Good morning, students. As we were reading chapter number 6, The Great Escape. Okay, The Great Escape. Yesterday we have done its hard words and what we have read in this story. In this story, we have read about the young girl Dorothy who gets carried away from her home by a cyclone and she reaches the magical land where she meets the cowardly lion, the tin woodman, and the scarecrow. Everyone has different wishes, so they all have to decide to travel to the Emerald City. Why they all have decided to travel to the Emerald City? To meet the great wizard. So, when they have to start to travel, they found a ditch. That ditch was so deep and it has also a sharp rocks inside the ditch. But after a great efforts, they all have crossed that ditch. But what happened what happened while they have started walking along the road to continue their travel? Let me see in this today's class. It seems a very interesting story. Okay, now they were all very pleased to see how easily he did it. सारे के सारे बहुत खुश थे कि किस तरह से लॉयर ने इजी वे में सभी को वो डिच क्रॉस करवा दी थी. One by one the lion carried all of them and landed safely on the other side. Lion ने सभी को one by one safely other side पहुंचा दिया था. They all approached other side safely. After resting for a while, they started walking along the road, and soon they heard strange noises from deep inside the forest. So while they have started walking along the road, suddenly they all heard a strange noise. Whose noise was that? Let me see. The lion whispered, "That must be the Kalidas. They live in this part of the country." लॉयन विस्पर, ये जरूर कालिदास होना चाहिए. ये कंट्री के इस पार्ट में रहते हैं. इट मीन्स इस फॉरेस्ट में वो रहते हैं. व्हाट आर कालिदास? आस्क्ड डोरथी. डोरथी आस्क्ड टू द लॉयन, व्हाट आर कालिदास? कौन है ये? दे आर फ्राइटनिंग बीस्ट विद बॉडीज लाइक बेयर्स एंड heads like tigers, replied the lion, with long and sharp claws. I am very afraid of the Kalidas. Then lion explained about the Kalidas. They are frightening beasts, and their bodies like a bear's, and their heads like a tiger's. They have also long and sharp claws. Lion told to the Dorothy, I am very afraid of the Kalidas. They came to another ditch across the road, but this one was so broad and deep that the lion knew he could not jump over it. So they sat down to think what they could do. Now this time once again they find another ditch, but it was too broad than the first one. They all sit and they all were beginning to think. और सभी ने सोचना स्टार्ट कर दिया क्या करेंगे वो. Turn your page. The scarecrow said, "This tree is very close to the ditch. If the tin woodman chop it down, it will fall to the other side and we can walk over it easily." Suddenly, Scarecrow had an idea. What idea he had? He said, if the tin woodman cut this tree, chop this tree, then it will fall to the other side and then we can walk to the other side very easily. अगर टिन वुडमैन वो जो ट्री है नियरेस्ट ट्री है
उसको चॉप कर दे तो वो क्या होगा, डिच के ऊपर फॉल हो जाएगा और इसकी वजह से हम अदर साइड ईजी वे में चले जाएंगे। दैट इज़ ग्रेट आइडिया सेड द लॉयन, वन वुड ऑलमोस्ट थिंक यू हैड ब्रेन्स इंस्टीड ऑफ स्ट्रॉ। तभी लॉयन ने कहा, हाँ ये तो बहुत ही ग्रेट आइडिया है, कौन कहता है कि तुम्हें ब्रेन की ज़रूरत है इंस्टीड ऑफ स्ट्रॉ की जगह पर। द वुडमैन सेट टू वर्क एंड चॉप द ट्री, और तभी वुडमैन ने वर्क स्टार्ट कर दिया और उसने ट्री को चॉप कर दिया। देन द लॉयन पुट हिज फ्रंट लेग्स अगेंस्ट द ट्री and pushed it slowly. The big tree tipped and fell with a crash across the ditch with its top branches on the other side. तभी लॉयन ने क्या किया, अपने फ्रंट लेग को ट्री के अगेंस्ट रखा और वो उसको पुश किया और धीरे से वो जो बिग ट्री था वो फेल हो गया। और उसने क्या किया, वो जो ट्री थी कैसे फेल हो गई, फेल विद अ क्रैश अक्रॉस द डिच के ऊपर से गिरी और वो अदर साइड तक चली गई। विद इट्स टॉप ब्रांचेस ऑफ द अदर साइड, अब उसकी जो टॉप ब्रांचेस थी वो अदर साइड चली गई। दे हैड जस्ट स्टार्टेड टू क्रॉस द ब्रिज व्हेन अ शार्प ग्रॉल मेड देम ऑल लुक अप। और उन सभी ने क्या कर दिया था, ब्रिज को क्रॉस करना स्टार्ट कर दिया था। तभी जो है उनको शार्प ग्रॉल की साउंड आती है, विच वॉज मेड बाय कालिदास। दे सॉ टू ग्रेट बीस्ट विद बॉडीज लाइक बेयर्स एंड हेड्स लाइक टाइगर्स रनिंग टूवर्ड्स देम। तभी उन्होंने क्या देखा कि जो टू बीस्ट हैं वो जिनकी बॉडी बेयर्स की तरह हैं और हेड टाइगर्स की तरह हैं, बोथ आर रनिंग टूवर्ड्स देम, दोनों दौड़ते हुए आ रहे हैं उनके पास। द कालिदास सेड द लॉयन एंड बिगनिंग द शेक विद फियर। लॉयन ने कहा, ये तो कालिदास है, और वो डर के मारे कांपने लगा। स्टैंड क्लोज बिहाइंड मी, आई विल फाइट देम एज लॉन्ग एज आई एम अलाइव। तभी कहा, लॉयन ने क्या कहा कि ठीक है, स्टैंड क्लोज बिहाइंड मी, मेरे पीछे जो है खड़े हो जाओ, मैं तब तक फाइट करूँगा जब तक मैं अलाइव यानी जिंदा रहूँगा। द लॉयन टर्न टू फेस द कालिदास एंड गेव आउट अ लाउड एंड टेरिबल रोर। और तभी लॉयन ने क्या किया, अपना फेस कालिदास की तरफ टर्न किया और उसने लाउडली और टेरिबली रोर किया। टेरिबली इट मीन्स वेरी अनप्लीजेंट वे में उसने रोर किया। आउट ऑफ फ्राइट डॉरथी स्क्रीम्ड एंड द स्केयरक्रो फेल ओवर बैकवर्ड्स। आउट ऑफ फ्राइट यानी बिकॉज ऑफ फियर, डर के मारे डॉरथी जो थी वो स्क्रीम्ड करने लगी यानी लाउड साउंड करने लगी, और स्केयरक्रो जो था वो बैकवर्ड्स जाकर फेल हो गया, गिर गया। द कालिदास सेड द लॉयन द कालिदास स्टॉप्ड एंड लुक एट द लॉयन इन सरप्राइज। कालिदास रुक गया और उसने सरप्राइजिंगली लॉयन की तरफ देखा। बट सीइंग दे वर बिगर देन हिम, दे रस्ड फॉरवर्ड्स एंड बिगन टू क्रॉस द ब्रिज। लेकिन वो जो बीस्ट थे वो लॉयन से ज़्यादा बिगड़ थे और वो आगे की ओर बढ़ने लगे एंड बिगन टू क्रॉस द ब्रिज, और उन्होंने ब्रिज को क्रॉस करना स्टार्ट कर दिया। वो कालिदास हरी अप क्राइड द स्केयरक्रो, लेट अस क्रॉस ओवर। तभी स्केयरक्रो जो है वो चिल्लाने लगता है, जल्दी करो, हमें ये क्रॉस करना है। द फोर ऑफ देम क्रॉस द ब्रिज एज क्विकली एज दे कुड। वो चारों जो थे इतनी जल्दी ब्रिज को क्रॉस करने लगे जितनी जल्दी वो क्रॉस कर सकते थे। Once they reached the other side, the scarecrow asked the Tin Woodman to chop away the end of the tree that was on their side of the ditch. जैसे ही वो उन लोगों ने इस डिच को क्रॉस किया, तभी स्केयरक्रो ने टिन वुडमैन से कहा कि तुम इस ट्री के एंड को चॉप कर दो ताकि उसका जो अनदर साइड है वो डिच के अंदर चला जाए। क्विक क्राइड द स्केयरक्रो, स्केयरक्रो चिल्लाने लगा, जल्दी करो। द वुडमैन बिगन टू यूज़ हिज एक्स एट वंस, और जो वुडमैन था उसने अपने एक्स का यूज़ करना स्टार्ट किया। एंड द कालिदास हैड ऑलमोस्ट क्रॉस द ब्रिज व्हेन द ट्री फेल विद अ क्रैश इनटू द डिच अलॉन्ग विद द बीस्ट। जैसे ही कालिदास जो था ऑलमोस्ट उसने ब्रिज को क्रॉस कर ही लिया था, तभी टिन वुडमैन ने उस ट्री को
चॉप कर दिया और वो ट्री जो थी वो कहाँ चली गई, डिच के अंदर विद द बीस्ट, और उनके साथ साथ बीस्ट भी चले गए। वेल सेड द लॉयन ड्रॉइंग अ लॉन्ग ब्रीथ ऑफ रिलीफ। लॉयन ने कहा ओहो अच्छा हुआ। एंड दैट टाइम लॉयन फीलिंग वेरी हैप्पी बिकॉज समथिंग अनप्लेजेंट हैज़ नॉट हैपेंड और हैज़ एंडेड। क्योंकि जो अनप्लेजेंट थिंग होने वाली थी, वो जो कालिदास थे, जो बीस्ट थे, वो उनकी तरफ बढ़ने वाले थे, उन पर अटैक करने वाले थे, बट अब ये अनप्लेजेंट थिंग जो थी उनके साथ नहीं हुई। दोज क्रिएचर्स फ्राइटन मी सो बैडली दैट माई हार्ट इज स्टिल बीटिंग। जो क्रिएचर्स मुझसे डरते हैं सो बैडली दैट माई हार्ट इज स्टिल बीटिंग, और मेरी हार्ट जो होती है वो बीट करने लगती है। आह सैड द टिन वुडमैन सैडली आई विश आई हैड अ हार्ट टू बीट। तभी जो है टिन वुडमैन कहता है लॉयन से कि काश मेरे पास भी हार्ट होता जिसकी वजह से वो बीट करता। तो यहाँ लॉयन बताता है कि जो क्रिएचर्स मुझसे डरते हैं ओके, और बहुत बुरी तरीके से डरते हैं, दैट माई हार्ट इज़ स्टिल बीटिंग, उनसे मेरा हार्ट जो है अभी जो है वो मेरा हार्ट जो है वो बीटिंग कर रहा है। और तभी टिन वुडमैन कहता है काश कि मेरे भी हार्ट होती बीट करने को। द फोर ट्रेवलर्स केप्ट वॉकिंग अंटिल दे वुड सी अ येलो ब्रिक रोड एंड ग्रीन मीडोज ऑन द अदर साइड ऑफ अ ब्रॉड रिवर। और वो फोर ट्रेवलर्स तब तक वॉकिंग करते रहे जब तक उन्हें येलो ब्रिक रोड और ग्रीन मीडोज नहीं मिल गए, तब तक वो वॉक करते रहे। नाउ दिस टाइम दे रिच्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द ब्रॉड रिवर एंड सून दे सॉ अ डिलाइटफुल कंट्री, दैट एमरल्ड सिटी। Okay, so that was our chapter, students. So it was very interesting chapter about the Dorothy and her adventure also. She has also adventure, okay, because she meets with Tin Woodman, Scarecrow, Lion and Beast also, and she has also experience about that. So I hope you must have enjoyed with this chapter. Once again you will read the chapter.